जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रिवॉल्यूशन टेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, आज हम फर्दर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नीट 2021 क्वेश्चन पेपर के। सो वी विल डू आवर नेक्स्ट सीरीज। So we will do next 5 question number 36 to 40. So what is this question? That 3 resistors having resistance R1, R2 and R3 are connected as shown in the figure. You need to find the ratio of I3 is to I1. आपको I3 is to I1 का रेशियो बताना है। So in this question, what is given? We know, हमें ये पता है कि the current at any junction will divide into number of paths further. कितने आगे paths हैं उसमें डिवाइड हो जाएगा। So we can write this I1 will divide into I2 and I3. So by KCL, Kirchhoff current law से हम क्या लिख सकते हैं? That I1 will be equal to I2 plus I3. That is, from here we can write I2 will be equal to I1 minus I3. We can write this, and we can write this resistor R2 is parallel to R3. R2 R3 से पैरेलल है। हम इसका एक और तरीका डिस्कस करेंगे, दैट इज करंट डिवाइडर रूल। कैसे यूज करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, बट दिस इज वेरी बेसिक। ये हमें पता है एट दिस जंक्शन we will apply KCL. We can apply KCL at a junction that the incoming current I1 will be equal to outgoing current I2 plus I3. तो हम यहां से I2 को लिख सकते हैं I1 minus I3, and we can write this resistor R2 and R3 are parallel. R2 और R3 resistance क्या है? पैरेलल में। So the potential across R2 will be same as potential across R3 resistance. And what is the potential? The current I2 into R2, which is equal to I3 into R3. And I2 can be written as I1 minus I3. क्योंकि मैं I1 और I3 में रिलेशन चाहिए तो I2 को यहां से हटा दीजिए। That can be written as I1 minus I3 times of R2 is written as I3 R3. So we can write I1 R2 as, we can write I1 R3 plus I3। We can write I3, क्योंकि I3 को राइट साइड ले जा सकते हैं, तो I3 को जब राइट साइड ले जाएंगे, दिस इज I3 R3, I3 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये R2 हो जाएगा। टेक I3 as कॉमन, तो I1 R2 कैन बी रिटन एज I3, दिस इज R2 प्लस R3। तो आपको क्या निकालना है? I3 by I1 निकालना है। तो फ्रॉम हियर I3 by I1, I3 by I1 यहां से निकाल लीजिए। व्हाट इज I3 by I1? I3 by I1 comes out to be R2 upon R2 plus, this is R2 upon R2 plus। This is the conventional method। ये तो आपका एक कन्वेंशनल मेथड है। The same can be discussed with current divider rule। सेम कैन बी डिस्कस्ड विद करंट डिवाइडर रूल। इसी सेम क्वेश्चन को हम करंट डिवाइडर रूल से भी कर सकते हैं। दैट if this resistance is let R1, this resistance is R2। मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 और R2 है और I अमाउंट ऑफ करंट इज डिवाइडिंग इनटू I1 एंड I2। एक I अमाउंट ऑफ करंट, दो करंट I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है, हैविंग रेजिस्टेंस R1 एंड R2। तो व्हाट वी कैन राइट बाय करंट डिवाइडर रूल, दैट दिस I1 वैल्यू विल बी इक्वल टू, अब I1 किस में करंट जा रहा है? R1 में, तो हम R1 को नहीं लेंगे, ऑपोजिट को लेंगे। ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना है? R2 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज सम ऑफ रेजिस्टेंस? R1 प्लस R2 into total current. What is total current? I. Similarly, we can write I2. I2 is the current flowing across R2,
So we'll not take R2, we'll take R1. R1 upon R1 plus R2 into total current. Similarly, हमें क्या निकालना है? I3 और I1, मतलब I3 की वैल्यू निकालनी है. तो हम करंट डिवाइडर रूल को अगर हम यूज करें, तो हम लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू करंट R3 में निकालना है तो लेंगे ऑपोजिट रेजिस्टेंस को R2 अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस R2 प्लस R3 इनटू टोटल करंट विच इज डिवाइडिंग, और डिवाइडिंग करंट कितना हो रहा है? I1. So you will get this same. So using current divider rule, the question will be very easy. Moving to our next question. This question is related to very basic of optics. अगर आपको ऑप्टिक्स का बहुत बेसिक इमेज फॉर्मेशन आता है तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. While some of them will claim this question is very difficult, but this question is very easy. अगर आपको बेसिक्स आते हैं ऑप्टिक्स के, then this question can be very easily done. क्या बोल रहा है? A point object is placed at a distance of 60 cm from a convex lens of focal length 30 cm. एक फोकस ये इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 30 है और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? 60 पे. मींस दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f. ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, रियल ऑब्जेक्ट है, तो इसकी रियल इमेज भी बनेगी. और कहां पे बनेगी? 2f पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहां बनती है? 2f पे ही बनती है. ऑन द अपोजिट साइड रियल रेज विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दे विल मीट एट द फोकस. और कितनी डिस्टेंस पे? 2f पे, 60 पे. अगर 60 पे ऑब्जेक्ट है तो 60 पे इमेज बनेगी. बट बिटवीन देम क्या बोल रहे हैं? एक मिरर रख दिया है तो रे विल नॉट कंप्लीटली मीट एट दिस पॉइंट. उससे पहले क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. लेकिन बनेगी कहां? लेकिन अगर ये मिरर ना होता तो इमेज कहां बनती? 60 पे. और अगर इमेज 60 पे बनती लेकिन बनी नहीं है तो जो ये इमेज बनती ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होती. तो अगर ये डिस्टेंस 60 है, सो व्हाट इज दिस? 20. अब हमें पता है मिरर के लिए, क्योंकि ये अब हमें पता है फॉर प्लेन मिरर जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है इमेज उसकी ऑपोजिट बनती है. तो अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो मिरर इसकी क्या बनाएगा? एक रियल इमेज बनाएगा. कितनी डिस्टेंस पे? सेम डिस्टेंस 20 पे. तो जो ये इमेज बनाएगा मिरर वो कितने डिस्टेंस पर बनाएगा? 20 पे. तो इफ विल जूम इट आउट, आई विल जूम इट आउट, द सिचुएशन विल बी लाइक समथिंग हियर कि जो मिरर के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कहां पे मिलेंगी? मिरर से 20 सेंटीमीटर पे. अगर ये मिरर से 20 सेंटीमीटर पे रेज होंगी, अब ये जो इमेज है जो कि रियल इमेज है, मींस द रेज विच आर ट्राइंग टू कन्वर्ज, यहां पे कन्वर्ज करती, लेकिन यहां के आप कहां कन्वर्ज करेंगे? दिस पॉइंट पे, यहां पे मिरर ये इमेज बनाएगा. अब ये रेज फर्दर मूव करेंगी, मतलब दोबारा से रिफ्रैक्ट होंगी. रेज विल फर्दर मूव एंड रिफ्रैक्ट. ये रेज क्या होंगी? दोबारा से रिफ्रैक्ट होंगी, मतलब एक बार और रिफ्रैक्शन होगा लेंस से. और उस लेंस के लिए रेज अब किधर जा रही हैं? लेफ्ट साइड जा रही हैं. आपका ऑब्जेक्ट कहां है? कहां कितनी डिस्टेंस पे? ये 20 हो गया तो ये कितना बचा? 40 है तो ये 20 बचा, 20 सेंटीमीटर. रेज आर गोइंग टू लेफ्ट. अगर रेज लेफ्टवर्ड जा रही हैं तो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई? -20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी है इस लेंस की? +30 सेंटीमीटर. तो यूज द इमेज फॉर्मूला. और मैं पता, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? फोकस के अंदर. और ऑब्जेक्ट अगर कॉन्वेक्स लेंस में फोकस के अंदर है तो रियल इमेज तो बन ही नहीं सकती है. इमेज विल बी वर्चुअल. तो ये तो दो अपने आप ही कैंसिल हो गए कि रियल इमेज बन ही नहीं सकती है. उसके अलावा इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल. डिस्टेंस क्या होगी वो हम निकाल लेते हैं. यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f.
1/v माइनस 1/u कितना -20 इज इक्वल टू 1/30. If we solve this, 1/v comes out to be 60 LCM. This comes out to be 32 जा 60 and ये माइनस माइनस प्लस उधर जाके फिर माइनस तो -3. तो v comes out to be -60. माइनस itself denotes कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड में है कॉन्वेक्स लेंस के लिए. और कहां से डिस्टेंस है 60? लेंस से. लेकिन डिस्टेंस कहां से दी गई है? प्लेन मिरर से. तो मिरर से कितने डिस्टेंस, लेंस से कितनी डिस्टेंस पे? 60 पे. लेकिन मिरर कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 40 पे. तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 20. मतलब मिरर से कितनी डिस्टेंस? दैट विल बी योर आंसर. तो अगर आपको ये पता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है और 2f पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी 2f पे इमेज बननी चाहिए, लेकिन बीच में आ गया मिरर, तो मिरर उस वर्चुअल, क्योंकि जो इमेज अब बनेगी इमेज बननी चाहिए लेकिन बनी नहीं, मतलब जो इमेज बननी चाहिए लेंस के कारण, जो इमेज बननी चाहिए वो इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और अगर प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो उसकी रियल इमेज. इतने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे इमेज. तो 20 पे ऑब्जेक्ट तो इसकी 20 पे इमेज. दैट्स व्हाट आई हैव शोन ओवर हियर. नाउ आप ये रेज दोबारा लेफ्टवर्ड मूव करेंगे तो एक बार रिफ्रैक्शन और होगा लेंस से, एक बार और रिफ्रैक्शन होगा लेंस से, तो अप्लाई लेंस फॉर्मूला. अगर ये डिस्टेंस 20 है तो ये कितनी 20, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20. फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस 30 गिवन है, +30 होता है. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. अप्लाई द फॉर्मूला. हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ फोकल लेंथ. तो इससे एक बार पहले ही पता चल गई कि इमेज जो बनेगी कॉन्वेक्स लेंस के कारण वो वर्चुअल बनेगी. तो रियल वाले तो पहले ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए. अब बचे दो ही ऑप्शन हमारे पास. यूज द फॉर्मूला, यू विल फाइंड द इमेज v comes out to be -60. माइनस दोबारा बता रहा है कि इमेज कैसी बनेगी, इमेज दोबारा से कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी कॉन्वेक्स लेंस के कारण. और लेंस से कितने डिस्टेंस पे? 60 पे. लेकिन 60 कोई ऑप्शन में नहीं है, मतलब डिस्टेंस कहां से दी है? प्लेन मिरर से दी है. और लेंस से मिरर कितनी डिस्टेंस पे? 40 पे. और मिरर और इमेज कितनी डिस्टेंस पे? 60 पे. तो प्लेन मिरर से कितनी डिस्टेंस पे? 20 पे. दैट विल बी आंसर. तो अगर आपको बेसिक्स पता है, यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक गेट्स. तो इसके लिए आपको लॉजिक गेट्स आने चाहिए. व्हाट आर लॉजिक गेट्स एंड हाउ यू विल फॉर्म द ट्रुथ टेबल. बेसिकली लॉजिक गेट्स हैव ओनली 2 इनपुट्स. और लॉजिक गेट के बारे में बात कर लेते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट जो आपके लिए यूजफुल होंगे. वन इज इन्वर्टेड लॉजिक गेट, जिसे हम नॉट गेट बोलते हैं. तो नॉट गेट, एंड देयर आर 2 मोर दैट इज जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होंगे, दैट इज एंड और. और हम एंड और में नॉट जोड़ देंगे तो हमारे लिए गेट बन जाते हैं नैंड एंड नॉट. चलिए एक एक की बात करते हैं. तो दिस इज इन्वर्टेड गेट और इसी को बोलते हैं नॉट गेट. दैट इज इफ देयर इज ए ट्रायंगल और ट्रायंगल के आगे डॉट लगा हुआ है, दिस इज नॉट गेट. इसका मतलब क्या है? इफ द इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी 1, आउटपुट विल बी इन्वर्टेड. इफ द इनपुट इज 1, आउटपुट विल बी 0. This is your NOT gate. Another one is your AND gate. AND gate is represented by this sign, having 2 inputs and 1 output. Logic gate में input can either be 0 or 1. So there are 4 possibilities. If there are A and B, so C, which is represented by A dot B. That is, if we'll give input A, B, the C comes out to be A dot B, and this is known as AND gate, represented by this sign. Now, so what are the inputs possible? 0, 0 input हो सकता है, 0, 1 input हो सकता है, 1, 0 input हो सकता है, 1, 1 हो सकता है input. So if 0 into 0, that comes out to be 0. That comes out to be 0. 0 into 1,
0, 1 into 0 0 and 1 into 1. दिस इज, अब याद कैसे रखेंगे, एंड मतलब जब दोनों सेम होंगे तब 1, जब दोनों 1 होंगे तब 1, अदरवाइज 0. तो जब दोनों 1 है तभी 1, अदरवाइज. एंड नेक्स्ट वन यू विल टॉक ऑफ और गेट. दूसरा किसकी बात करेंगे, और गेट की. अब देखिए इसी में हम क्या लगाते हैं, इन द सेम गेट इफ विल अप्लाई ए डॉट. अगर सेम गेट में हम एक डॉट और लगा दें तो दिस इज नथिंग बट नो एंड प्लस नॉट, और इसी को बोलते हैं नैंड. इसका मतलब क्या है, जो हमारा आउटपुट सी आया है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर हम बात करें सी इन्वर्ट, तो इन्वर्ट का आ जाएगा 1 1 1. दैट इज योर नैंड गेट विच इज A dot B. Next we will talk of OR gate, represented by this sign like. If again having two inputs, इसमें भी दो इनपुट होंगे A, B and C is represented by A plus B. दोबारा से उसकी भी ट्रुथ टेबल हम डिस्कस करेंगे. ए बी ए प्लस बी. दोबारा से चार ऑप्शन ही हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1. नाउ एंड का मतलब कोई भी एक अगर 1 है तो आउटपुट 1. तो 0 0 का तो 0, लेकिन इनमें एक 1 है तो आउटपुट 1, इनमें एक 1 है तो आउटपुट 1, अगर दोनों 1 है तो भी आउटपुट 1. अब अगर सेम गेट में हम नॉट और लगा दें तो ये ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो वी कैन राइट ए प्लस बी इन्वर्ट कम्स आउट टू बी 1 0 0 0, और इसमें हम नॉट लगा दें सो दैट कम्स आउट टू बी नॉर गेट, नैंड गेट, सॉरी नैंड गेट. दिस इज नॉर, सॉरी दिस इज नॉर, दिस गेट वाज नॉर गेट, सिंपली सॉरी, दिस इज नॉट और plus not. This is sorry, we have written this is NAND, that is not plus AND. Fine. And this is your NOR gate. This is OR. This is your OR, that is not plus OR. और मतलब दोनों में से कोई एक हो 1. Fine. So using the truth table we can find it very easily. So basically हमें याद क्या रखना है, I will explain this again. ठीक है, so this gate is your, इस गेट को हम क्या बोलते हैं, this gate is known as your AND gate. और AND में अगर हम NOT लगाते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, NAND, that is NOT plus AND. Similarly this is known as your OR gate. इसे हम क्या बोलेंगे, OR gate, that is OR gate में NOT और लगा दें तो ये क्या बन गया आपका, NOR gate. और मतलब दोनों में से कोई एक भी बनो तो आपका आउटपुट 1 है. Fine. So I am again giving you brief recap. What is NOT? NOT is an inverted gate. NOT gate एक inverted gate है. इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, that if input is 0, output will be 1. If input is 1, this is output is 0. Now I will give you about, this is AND gate. AND मतलब दोनों इनपुट अगर 1 है तभी आउटपुट 1 आएगा. So this is having A, B and represented by A dot B. Symbol is having like this. That is 0 0 0 1 1 0 1 1. So 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 1. Similarly, if you will add one not in this, that becomes NAND. तो ये आपका हो गया AND, और AND में हमने नॉट जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया NAND. NAND क्या आएगा, A dot B में भी इनवर्स, that is 0 0 0 1 1 0 1 1. सो 0 0 0 आना चाहिए लेकिन आएगा 1, नॉट लगा रखा है. 1 0 0 0 लेकिन NAND लगा रखा तो 1, ये भी 1 ये. So this is your NAND gate. Next we will talk of NOR gate. First of all, OR gate. OR gate is represented by like this. OR means कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट विल बी, कोई भी एक गेट अगर, कोई भी एक इनपुट अगर आपका 1 है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा. लाइक is A, B, so this is represented by A plus B. Truth table will be A, B, A plus B. So truth table comes out to be 0 0 0 1 1 0 1 1. That is, इनमें दोनों इनपुट 0 तो 0, एक इनपुट 1 तो 1, ये भी 1 ये भी. और इसी में अगर हम एक क्या लगा दें, नॉट लगा दें, तो ये हो जाएगा A प्लस B का नॉट. दैट इज, जो इन आउटपुट 0 था वो 1 हो जाएगा, जो 1 था वो 0. A B, A प्लस B का नॉट, तो 0 0 0 1 1 0 1 1. 0 0 comes out to be 0 लेकिन 1 नॉट लगा हुआ है. All these three are 1, so they comes. अब अगर ये आपको ट्रुथ टेबल पता है, then you can do that question very easily. अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को मैं पूरा करने की जरूरत नहीं है. वी नीड टू डू सम सेगमेंट्स. आपको कुछ सेगमेंट करने हैं जिनमें आपको इन ऑप्शंस में डिफरेंस नजर आ रहा है. फाइन. सो आपका 5 वोल्ट 1 की तरह बिहेव करेगा और 0 0 की तरह. दिस गेट यूज्ड इज AND and this gate which is used is NAND, and this gate is your OR gate. So we will make the table for different time segment and find which of the result is fine. सबसे पहले, क्योंकि T1 is to T2 में अगर हम निकाल लें, T1 और T2 के बीच में निकाल लें अगर हम रिलेशन, what is the output, तो हमें कई ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. तो देखते हैं. तो फ्रॉम T1 टू T2, T1 से T2 के बीच में अगर हम बात करें तो इट विल टॉक ऑफ A एंड B. A और B की बात करें तो एट T1 एंड T2 A इज 1 while B is 0. तो 1 एंड 0, और लगाना कौन सा गेट है, AND गेट. AND गेट में दैट इज A डॉट B comes out to be 0. लेकिन अगर हम C और D की बात करें, इन द सेम, सॉरी, C एंड B is no D, this is B. अगर हम C और B की बात करें तो B तो यही रहेगा 0, लेकिन C कितना है, C is 1, देखिए 5 है, तो 1 0 का NAND आना चाहिए 0 लेकिन आ गया 1. अब ये दोनों एंट्री OR के फॉर्म में यूज होंगी. तो अगर OR आएगा तो आउटपुट इनका क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज 0 1 0 1 1 है, तो आउटपुट 1 आना चाहिए. मतलब T1 से T2 में जो आपका आउटपुट आना चाहिए 1, दैट इज 5 वोल्ट आना चाहिए. तो पहला तो गलत हो गया, इसमें 0 वोल्ट है. फोर्थ भी गलत हो गया क्योंकि इसमें भी कितना है, 0 वोल्ट है. अब बचा ऑप्शन 2 और 3. अब 2 और 3 में सब जगह यूज नहीं करना है, आपको उन टाइम में देखना है जहां दोनों में डिफरेंस हो. तो देखिए T3 टू T4 में डिफरेंस है,
T3 से T4 में दोनों में डिफरेंस है, एक में 0 है आउटपुट, एक में 5 है, तो T3 से T4 चेक कर लीजिए। T3 से T4 A और B की बात करेंगे तो A इज 1, B इज ऑल्सो 1, A भी 1 और B भी 1, A भी 1, B भी 1, तो A डॉट B भी 1। विल टॉक ऑफ C एंड B। तो T3 से T4 B तो सेम रहेगा, C कितना है 0, C कितना है 0, T3 से T4 तो 0 1, दिस कम्स आउट टू बी A डॉट B। तो 0 1 आना चाहिए एंड से 0, लेकिन क्योंकि हमने इन्वर्टेड कर रखा है तो इसलिए आ जाएगा 1, और इनमें और लगाएंगे तो आउटपुट कितना आएगा 1, दैट इज यहां पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए, तो दिस विल आल्सो कैंसिल्ड आउट। मतलब तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको उन सेगमेंट्स को एलिमिनेशन मेथड विल बी यूजफुल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई मींस ऑफ 220 वोल्ट। एसी इनपुट कितना हम यूज कर रहे हैं 220 वोल्ट, इज मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट एंड 44 वॉट लैंप। 44 वॉट लैंप, हमें आउटपुट पावर कितना मिल रहा है, पावर कितना मिल रहा है बेसिकली 44 वॉट। बोल रहा है इग्नोरिंग द पावर लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर, मतलब ट्रांसफॉर्मर में पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा है। अगर पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू V1 into I1 which will be equal to V2 into I2, that is V input into input current is equal to V output into output current। तो पावर कितना है 44, V इनपुट कितना है 220 इंटू करंट आपको निकालना है, तो I1 कैन बी 44 अपॉन 220, that is this comes out to be 10, this comes out to be 2, that is 0.2। Moving to the next question, बोल रहा है यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A एंड रेजिस्टेंस R इज बाउंड अप एज ए करंट कैरिंग क्वाइल। एक 12A लेंथ के वायर को आप, जिसका रेजिस्टेंस R है, एक करंट कैरिंग क्वाइल में चेंज कर रहे हो, और शेप कैसी है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक की स्क्वायर। तो आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू NIA of a current carrying loop। The magnetic dipole moment is given by this formula, where what is N? N is number of turns, I is current, and A is area of loop। तो क्या कर रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में चेंज कर रहे हैं जिसकी साइड कितनी है A यूनिट। तो अगर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की A यूनिट है, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में चेंज कर रहे हैं जिसकी साइड A यूनिट है, और टोटल लेंथ कितनी हम यूज कर रहे हैं 12A, अगर साइड A है, इफ इट्स साइड इज A यूनिट, तो टोटल लेंथ, टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3A। टोटल पेरीमीटर विल बी 3A। तो नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे 12A अपॉन 3A, दैट इज 4। एंड व्हाट विल बी द एरिया, √3/4 into A square। So what will be dipole moment? So what will be dipole moment? NIA, that is N is 4, I is I, A is √3/4, A square। So 4 cancel out, that comes out to be √3I A square। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, दूसरा आपको करने की भी जरूरत नहीं, करना चाहें कर सकते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स,
दैट इज n डैश, वो कितना आ जाएगा 12a/4a, दैट इज 3। तो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स 3 इंटू करंट I इंटू एरिया A स्क्वायर, दैट इज 3I। सेम। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूला और बेसिक मेथड्स पता है, एंड बाय ऑप्शन एलिमिनेशन यू कैन डू द क्वेश्चन वेरी इजी। So this is all for today. Next series we will discuss further more questions. So thank you everyone. Jai Hind.